Good morning, my dear student of Standard 6th, and today in this session we are going to the third part of chapter number 9, Our Earth, Our Home. So let's begin without any delay. Hmm. So here there is some round figure given to you, and it is written that main latitude. Okay, so basically अगर हम लोग देखें तो सेंटर में से लाइन पास ऑन हो रही है, that means it's a equator. Okay, that we already studied. Then you will find topic of Cancer at 23 degree 5 minutes north and is written, and same bottom you also find topic of Capricorn again 23 degree 5 minutes south latitude, and then there is Arctic Circle at 66.5 degree, okay, and 66.5 degree south also. फ्रेंड दिस आर द मेन लेटीट्यूड्स. आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सी 23 डिग्री 5 नॉर्थ से 25 डिग्री जो बीच वाला ब्लू पोर्शन है ना, डैट मीन्स ये टॉपिक, ये इनको हम लोग टॉपिक्स कहेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स के बीच में आते हैं. ओके, एंड ये पार्ट में पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम बरसात होती है. नाउ लेट अस बिगिन. Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the Earth's surface. It is called equator, that we already know. The equator divides Earth into two parts. Okay, the portion above the equator is called the northern hemisphere. So जो अर्थ के ऊपर वाला पार्ट है, that is called northern hemisphere. Okay, hemisphere, and the portion toward the south of equator is known as the southern hemisphere, and नीचे वाला पार्ट को हम लोग southern hemisphere कहेंगे. Thus latitude in its north are called northern latitudes, and those south are called the southern latitudes. 23.5 degree north latitude and in the northern hemisphere, and topic are called topic of Cancer. So northern हेमिस्फीयर में अगर जो 23.5 उसको हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे. ओके, while 23 degree south 23.5 degree south latitude is in the southern hemisphere is called topic of Capricorn, that we also know. Similarly, 66.5 degree latitude in the north of equator is called the Arctic Circle, and 66.5 degree latitude in the south is called the Antarctic Circle. So above Arctic Circle and नीचे Antarctic Circle, that you are supposed to be remember. Okay, the speed of the sun between the topics of Cancer and topic of Capricorn in the south of the equator is called the solicit. Okay, so आपको ये वर्ड्स याद रखना है. solicit उसको कहते हैं. Therefore the circle between these are called solicits. It takes 6 months for this speed of the sun. So 6 months वहाँ पे ऊपर नाइट रहती है एंड 6 मंथ नीचे डे रहते हैं, और वाइस वर्सा बदलता रहता है. Now, the Earth is tilted the Earth is tilted at corner at 23.5 डिग्री. कल हमने देखा ना, अर्थ थोड़ी झुकी हुई है अपनी डिग्री से. सो इसके कारण ये डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं, और वहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है. Thus the sun rays fall almost straight into topic of Cancer and topic of Capricorn. तो सन रे जो है हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक लगभग स्ट्रेट है. नो इट, ये आपको ये पता होना चाहिए कि इन 23.5 डिग्री, ओके, तो 23 इज रीड एज डिग्री. ओके, 23 डिग्री एंड 0.5 रीड एज मिनट्स. ओके, तो 23 डिग्री 5 मिनट्स उसको हम ऐसे रीड करेंगे. तो अभी तक हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया यहाँ पर, ऊपर 66 डिग्री 5 मिनट्स हमको बोलना चाहिए था. एनी हाउ अब हम लोग सीख गए, तो आगे से गलती रिपीट नहीं करेंगे. As you can see the picture 9.8 very carefully. यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ दी गई है. सन है जो बहुत बड़ा शेप में है, एंड हमारा अर्थ है जो बेसिकली इक्वेटर टॉपिक्स में डिवाइडेड है. अब जो सन रेस है ना, जो बिल्कुल जो 0 डिग्री पे जा रहा है, उसका लेंथ आप लोग अगर मेज़र कर लेना जो भी आया है. ओके, ना अब हम लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हैं. यहाँ पे आर्टिक सर्कल लिखा हुआ है, और वो वाला एरो ऑप्शन से देखो, तो डोंट यू फील कि वो लाइन इक्वेटर की लाइन से बड़ी है. यस फ्रेंड्स, तो सेम वे सन की लाइट को हमें पहुँचने में टाइम लगता है.
सन की लाइट जो है वो इक्वेटर पर फटाफट पहुंच जाती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। बट ऊपर ही ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं तो सन की लाइट थोड़ा लेट पहुंचती है, उसको थोड़ा ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो उसके अंदर इतनी हीट और इतनी गर्मी नहीं रहती है। सेम वाइस वर्सा नीचे की तरफ होता है। ओके, सो यही आपको याद रखना है कि जितना हम लोग इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएंगे मौसम ठंडा होने लगता है, और ऊपर जाओ तो बिल्कुल आर्टिक सर्कल है। ओके, एंड सेम वे नीचे की तरफ जाओ तो नीचे अंटार्कटिक सर्कल है, तो सबसे कम गर्मी वहाँ पर होती है। इन सब वहाँ पर तो आइस के भी होती है। एंड यहाँ हम लोग बॉक्स पढ़ेंगे एक्टिविटी। ड्रॉ 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ड्रॉ 23 डिग्री 5 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड। ओके, आप लोग ये एक्टिविटी में ड्रॉ कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब फाइंड आउट दैट बोथ द लैटिट्यूड पास थ्रू विच कंट्रीज। ओके, ये लोग तो हमारे लिए वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। एनी हाउ, आपके मोबाइल फ़ोन्स में आपको जीपीएस देखने को मिलता होगा। ओके, तो ये जीपीएस क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नाउ विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस, मैं अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम थोड़ा बड़ा पड़ता है तो मैं शॉर्ट में जीपीएस कहूँगा। With the help of GPS, we come to know the latitude and longitude location of any place, the mobile phones and the Google Earth. Google Earth का भी एक एप्लीकेशन आती है, उससे हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन निकाल सकते हैं। The latitude and longitudinal location of any place may be found with the help of the mobiles which have internet access toward the latitude and longitude can easily be understood. Okay. वाओ, आज का अब एक नया टॉपिक आया है, डेट इज़ कॉल मेजर लॉन्गिट्यूड, डेट इज़ कॉल ग्रीनविच लाइन, जिसको हम लोग GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। एंड दूसरा आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। वेल, ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ है। वेल, वो है बलून। वेल, ये इतना राउंड नहीं है, बट आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये हमारा जो अर्थ है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक वाइट लाइन दिख रही है। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ पोल है। ओके, एंड ऐसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ग्रीन कलर में नीचे साउथ पोल तक। तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम लोग कहेंगे ग्रीनविच लाइन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर है ना, ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे से करके पीछे 180 की एक लाइन बनेगी। सेम वे हम लोग इस तरफ जब जाएंगे ना, इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 और 180, और 180 की एक ही कॉमन लाइन है जो आप लोग अभी बॉलून में देख सकते हो। आई थिंक प्रॉपरली विजिबल नहीं है, थोड़ा हाईलाइटर ग्रीन कलर में इसलिए। ओके, बट वो स्ट्रेट नहीं है, होना चाहिए उसको स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट नहीं है। वो कैसा है? इधर देखो 9.9 इंटरनेशनल डेट लाइन, वो थोड़ी सी जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक इसका काम ख़त्म हो गया है। ओके, वाओ, लेक्चर के बीच में एन्जॉयमेंट। एनी हाउ, सो हमारा जो 180 डिग्री की लाइन है उसको एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो थोड़ी जिगजैग फॉर्म में। क्यों है वो? वेल, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, एंड लेट्स सी ग्रीनविच लाइन। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल विच पासेज थ्रू द ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन। इंग्लैंड में ग्रीनविच सिटी है, उस पर से स्ट्रेट ये 0 डिग्री वाली लाइन पास होती है, तो इस लाइन को हम लोग ग्रीनविच लाइन कहेंगे। ग्रीनविच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, विच इज़ नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो फ्रेंड्स, यूजुअली मान लो ये जो मेरी स्क्रीन है ये पूरा वर्ल्ड मैप है, एंड इसके बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन पास होती है, जैसे इक्वेटर तो ऐसे पास होती है, लेकिन ग्रीनविच लाइन बिल्कुल सीधी वर्टिकल फॉर्म में पास होती है, तो वो हमारी पूरी दुनिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ओके, एंड द लॉन्गिट्यूड अप टू द 0 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच लाइन टू द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, एंड द longitudinal up to the 180 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन इज कॉल्ड द वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सो इसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके दोनों तरफ से लाइन निकलती हैं, और लास्ट में फाइनली एक 180 की कॉमन लाइन बनती है, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑन द राइट साइड, सॉरी, इसमें आपको ग्रीनविच लाइन दिख रहा है, 9 नॉट ग्रीनविच लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDLB जिसको हम लोग कह सकते हैं।
वेल ये ऊपर रसिया और अलास्का के बीच में होता है. सो रसिया इज अ पार्ट ऑफ रशियन कंट्री एंड अलास्का इज अ पार्ट ऑफ द अमेरिका कंट्री. एंड नीचे आपको समवेयर न्यूजीलैंड दिख रहा होगा. ओके फ्रेंड्स, आपके लिए एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है डेट न्यूजीलैंड इज़ अ कंट्री जहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग होती है. ओके, कैलेंडर की डेट बदलती है. एक्चुअली डेट लाइन को इसलिए फॉर्म किया गया है ताकि डे एंड डेट चेंज हो सके. ओके, नाउ 180 degree longitude is called the international date line and it is just one longitude. The date and time changes when we cross this line and it passes through the Pacific Ocean. तो जैसे हम लोग इस लाइन को चेंज कर मतलब इस लाइन को जैसे ही पास ऑन करते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, डेट चेंज हो जाती है ना. आपकी डे एंड डेट चेंज हो जाता है. और ये कहाँ से पास ऑन होती है, पैसिफिक ओशन से. इट इज़ एग्जैक्टली नॉट 180 डिग्री एट सम प्लेसेस. इट इज़ इन जिगजैग फॉर्म, है ना. मैंने आपको से कहा था कि इसको स्ट्रेट ना बना के ये था जिगजैग क्यों बनाया है. चलो रीज़न ढूंढते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज डैट इफ़ इट इज़ ड्रोन स्ट्रेट it will cross some islands and some countries because of which two date will mix up on the same island. हाँ, ये इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर इसको हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं ना, तो ये लाइन फिर बहुत सारी कंट्री में से पास होती, और बहुत सारी कंट्री के अगर मान लो कोई पर्टिकुलर आइलैंड है उसके बीच में से पास हुई, तो एक ही आइलैंड पे 2 डेट्स और 2 डेज पॉसिबल ही नहीं है. थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, बराबर. सो टू रिमूव सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन लोगों ने सच को जिगजैग कर दिया है. से फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ज़मीन का पीसेज है, थोड़ा इस तरफ आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ी लाइन को इस तरफ शिफ्ट कर लिया ताकि पक्का रहे कौन सी डेट रखनी है और कौन सा डे रखना है. एनी हाउ, इन सम प्लेसेस वाइल गोइंग टू द अदर साइड ऑफ एन आइलैंड डेट में भी चेंज, है ना. हम लोग सिर्फ आइलैंड ही चेंज करते हैं और दिन बदल जाता है. ओके, विच विल क्रिएट कन्फ्यूजन. टू प्रिवेंट सच दिस कन्फ्यूजन द लाइन इज डेरिवेटेड roughly through avoid any confusion of date. This line is drawn through the sea not on the land. तो इसको समुद्र के वाटर बॉडीज पे रखा गया है, मीन्स ओशंस पे रखा गया है, सी पे रखा गया है, ना कि इसको ज़मीन पे रखा गया है. ओके, नाउ ट्रॉपिक्स की बात करें ना, तो हमारा अर्थ जो है वो बेसिकली 3 टॉपिक्स में बटा हुआ है, डिवाइडेड है. सेंटर पार्ट हमने बोला टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे सनराइज मैक्सिमम आती है, उसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक्स. ओके, टॉपिकल जोन भी यहाँ पे लिखा हुआ है 9.10 टॉपिकल जोन्स में. गॉट इट. अब टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे टेम्परेट जोन. ऊपर भी टेम्परेट जोन है, नीचे भी टेम्परेट जोन है. वेल, ये टेम्परेट जोन ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है. ओके, एंड ऊपर फ्रिज जोन, तो भाई कभी अपने फ्रिज को ओपन करना और नीचे वाला पार्ट नहीं, जो ऊपर जहाँ पे सब बर्फ़ जमी होती है, और थोड़ा हाथ डाल के देखना कि हाउ फ्रिज जोन आपको कैसा फील होता है. ओके, वहाँ पे सच में ऐसा ही एटमोसफियर होता है. ओके, नाउ गोइंग फॉर द टॉपिकल जोन्स. From the given figure 9.10, it becomes clear that Earth is divided into different parts on the basis of the different temperature, light, heat and cold. Okay, so basically इसको डिवाइड क्यों किया गया है, गर्मी के हिसाब से, है ना. टेम्परेचर लाइट है, हीट ज़्यादा पड़ती है, मौसम ठंडा है या नहीं है. These parts are called zones. Regions receiving more or less light have heat have been divided the following. So इसको बेसिकली ये आप लोग नीचे फिगर में देख सकते हो. टॉरिड जोन एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टॉरिड जोन भी कहते हैं, टॉपिकल जोन्स भी कहते हैं. नाउ टेम्परेट जोन मॉडरेट हीट एंड लाइट, मैंने आपसे कहा था ना कि ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है. एंड फ्रीज जोन, जिसको पोलर जोन भी कहा जाता है, एक्सेसिव कोल्ड. फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ एंड बाकी के जितने भी टॉपिक्स रह जाते हैं डेट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट सेशन. आई होप आज आपको ये बॉलून फूटने वाला वीडियो अच्छा लगा होगा. एनी हाउ, बट काफ़ी नॉलेज मिला है आज के सेशन में, आई फील दैट. एंड टिल द लास्ट पार्ट, थैंक यू वेरी मच एंड वेट एंड एन्जॉय एंड बाय एवरीवन.